A person whose mind is not free, though he may not be in chains, is a slave, not a free man. This was the quote by Dr. B.R. Ambedkar to explain the idea of freedom. Hello, everybody. This is Danish, and today we are going to continue our lecture series on the fundamental rights. In the last lecture, we discussed until the right to equality, that is up to Article 18 of the Indian Constitution. In this lecture, we will be discussing about the right to freedom. So, right to freedom basically inculcates the Article 19, 20, 21 and 22. So, let's start the lecture for today. First of all, let's set the agenda for the day. In this lecture, you will be able to understand the concept of freedom, and the concept of freedom definitely in the eyes of constitution, and also some of the political concepts, political philosophies that explains what freedom is. And then the right to freedom of speech and expression, what is it that has been given in the article 19 of the Indian Constitution. Then we will also see, is the freedom to remain silent also a part of it? Then we will understand what are the limitations, what are the reasonable restrictions that has been given in the article 19 subclause 2 of the Indian Constitution. Then we will be discussing about article 20, where the definition of conviction will be explained, and then what are the protection in respect of the conviction of offenses has been given in the constitution, and along with the interpretation of the various case laws we will be going to discuss that. Also, further carrying on the discussion, we will discuss about the prospective and the retrospective laws, and what is the meaning of these three jargons, that is ex post facto law, double jeopardy and self-incrimination. To make the thing easy for you, I will be explaining in both English as well as Hindi language, a mixture of the two. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू फ्रीडम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम? इट हैज बीन डिफाइंड बाय द पॉलिटिकल फिलोसोफर एज, सबसे पहला, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, कि आपको आज़ाद होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे पहला कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट आपके पास नहीं होना चाहिए. दूसरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंडीशन इन विच द पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स. यू शुड बी गिवन सच एन एनवायरमेंट एन एम्बियंस जिसमें आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सरसाइज कर सकें और अपने बेस्ट लेवल पे डेवलपमेंट कर सके, पर्सनल लेवल पे डेवलप कर सके, अपने टैलेंट को, अपने पर्सनैलिटी को यूज कर सके, अपने पोटेंशियल को यूज कर सके. कंबाइनिंग दीज टू इज डिफाइंड एज फ्रीडम. ठीक है सर, ये तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीडम यहाँ पे मिलता है हम लोगों को, डेफिनेशन में हम लोगों ने दिया, उसका एक जनरल मीनिंग होता है कि वी हैव द राइट टू डू एनीथिंग दैट वन विश टू डू. सर, आप यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेकन है. द फ्रीडम दैट हैज़ बीन गारंटीड टू यू, जो आपको आज़ादी मिली है या फ्रीडम काम करने की मिली है, वो एब्सोल्यूट नहीं है. तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं कि आप किस हद तक फ्रीडम एंजॉय करते हैं, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय अ पॉलिटिकल थिंकर जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको बोला गया हार्म प्रिंसिपल. इन्होंने क्या बताया, पहले उसको पढ़ते हैं, उसको फिर सिंप्लीफाई करूंगा मैं. वो ये बोलते हैं दैट नो वन शुड बी फोर्सिबली प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्टिंग इन एनी वे ही चूजेस प्रोवाइडेड हिज एक्ट्स आर नॉट इनवेजिव ऑफ द फ्री एक्ट्स ऑफ अदर, एंड दिस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन रिगार्ड टू द राइट. मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे अगर कोई फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, my right to freedom should not infringe the right of others. So this is the harm principle. My freedom should not harm the others' rights. We have to maintain a delicate balance between the two. ठीक है सर. अब देखते हैं कि फ्रीडम जो है हमेशा से एक ऐसी चीज रही है जिसके बारे में डिमांड होता रहा. जब हम अपना कॉलोनियल हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें देखा गया कि दी ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कर्व द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि जब आप फ्रीडम होगा, आप एम्पावर्ड होंगे, आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट बी सब्जुगेटेड टू देम. तो दैट्स वाई
कुछ कुछ काम उन लोगों ने किया कॉलोनियल हिस्ट्री में, जैसे कि रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, इनेक्ट किया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 का। इसने क्या किया, पब्लिशिंग, कुछ भी पब्लिकेशन अगर आप ब्रिटिश के खिलाफ करते हैं तो उसको बैन कर दिया गया इसके थ्रू। ठीक है, अगेन अ tyranny कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। दूसरा, लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस वाज ब्रॉट आउट बाय एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम इन 1823। इसके वजह से क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय का जो मिरातुल अखबार जो था जर्नल, मिरातुल अकबर जनरल, उसको रिपील कर दिया, है ना, टू रिपील हिज पर्शियन जर्नल। ठीक है सर। वैसे ही हम लोग देखते हैं 1878 में जो लॉर्ड लिटन थे वाइसराय, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अगर ये लोग लिखने लगे अपने लैंग्वेज में और वो बहुत फेमस होने लगा, प्रोपागेट करने लगा, देन द आइडिया एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री विल बूस्ट, और डेफिनेटली फिर उनकी चलने वाली नहीं है। और इस तरह के और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए इंडियन फ्रीडम में, एंड वी एंड आवर people that were fighting over there, they demanded the freedom at every instances, and culminating all these, हम लोग देखते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है ऑन 26 ऑफ नवंबर 1950, उसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19, 20, 21, 22 के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि आपके पास कुछ राइट टू फ्रीडम है, एंड दिस राइट इज प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, क्योंकि ये पार्ट 3 का पार्ट था। ठीक है सर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्चुअल बेयर एक्ट में क्या लिखा है पहले, एंड देन वी विल डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेम। सबसे पहले आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल द सिटीजन्स, यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है। सिटीजन्स का मतलब क्या है कि आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है। बाकी के बहुत सारे आर्टिकल्स में आप देखेंगे पर्सन लिखा होता है। इट मीन्स इट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एज वेल एज द नॉन सिटीजन्स। तो आप दिमाग में सबसे पहले ये रखिए कि आर्टिकल 19 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स। क्या क्या फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, थ्रू आउट द टेरिटरी मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं। फिर लास्ट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है। इसी को ऑर्डर में याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं SAAMRES इन पोलैंड। मतलब क्या है? सैम, एक कोई लड़के का नाम रख लीजिए याद कि सैम रिसाइड इन पोलैंड, इसका शॉर्ट फॉर्म सैम रिसाइड इन पोलैंड। एज फॉर स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, और उसके बाद लास्टली आप जो है पोलैंड में रहता है, मतलब प्रोफेशन वगैरह। ठीक है सर। अब स्पीच और एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका केस लॉज के साथ क्या क्या उसका इंटरप्रिटेशन किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला, इसके 3 कंपोनेंट हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। सबसे पहला आपको होता है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, कि आपको इंफॉर्मेशन मिले। उसी के बेसिस पे हमारा आरटीआई एक्ट बना था कि व्हेन यू विल हैव द इंफॉर्मेशन ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्ट, राइट। तो सबसे पहला पार्ट हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा है टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, है ना, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इसका लेटेस्ट जजमेंट आप देखते हैं नवतेज सिंह जोहर केस जो कि हुआ था, डिक्रिमिनलाइज करता है आपको होमोसेक्सुअलिटी को, ये एक पार्ट हुआ। फिर तीसरा है राइट टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट, भी इसके अंदर में आता है कि आपको इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेसी रखना है, मेंटेन करना है। अब सर हुआ क्या कि ठीक है आपके पास बोलने की आज़ादी है, यू कैन स्पीक एनीथिंग, है ना। तो ये बोलने की आज़ादी में हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जब सबसे पहली बार बिजॉय इमैनुअल वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ, इसमें क्या हुआ कि स्कूल में बच्चे थे, नेशनल एंथम का सॉन्ग चल रहा था, नेशनल एंथम चल रहा था। उसमें जो कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे थे उनका मानना था कि हम लोग सिर्फ एज अ रिस्पेक्ट खड़े होंगे, लेकिन हम लोग नेशनल एंथम गाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं उस टाइम पे। ठीक है।
यू विल नॉट एक्चुअली स्पीक दैट। तो उस वजह से ये मैटर कोर्ट में गया एंड द कोर्ट फाइनली इंटरप्रेटेड कि कोई दिक्कत नहीं है, एज अ ट्रिब्यूट टू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट के तौर पे आप खड़े हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, आपको बोलना जरूरी नहीं है। इसी सेंस में ये भी इंटरप्रेट किया गया कि द राइट टू या फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। आपको चुप रहने का भी फ्रीडम इस आर्टिकल में गारंटी किया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद अब आगे देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या ये कहीं मेंशन्ड है आर्टिकल में? नहीं है मेंशन्ड, हम लोगों ने देखा अभी। लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जब आप खोल के देखते हैं तो आपको पता चलता है वहां पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि आपके पास यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है। इंडिया में ब्रिजभूषण वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली का जब केस होता है, इसमें इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो उसके अंदर इम्प्लाइड है, यू नीड नॉट बी वरीड। और ऑल्सो देयर वर थॉट्स दैट कि आप जो है ये पूरा जो फ्रीडम लिए हैं वो यूएसए से बोरो किए हैं, राइट। तो उसका जो एक्चुअल कोर एसेंस है जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी है। दैट इज वाई द फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन assumed to be an inclusive part of freedom of speech and expression। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने जैसा देखा कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब स्पीच एक्सप्रेशन फ्रीडम होने का मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से इसमें दिया है नथिंग इन द सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज पॉसिबल सच लॉ imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty of the integrity of India, security of the state, the friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, or in relation of contempt of court, defamation or incitement to an offense। ये येलो पार्ट को आपको फोकस करना है क्योंकि ये सारे जो हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और सर मैं ये इतना एक्सप्लिसिटली इतने लिख के सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, वो आपको मैं जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट तो मैं बताऊंगा। मेंस में एज इट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे 2 साल क्वेश्चन पूछे गए। अभी पिछले दो साल में ही कम से कम एक बार पूछ दिया गया और 2-3 साल 4 साल पहले भी एक बार पूछा गया। उसमें क्या पूछा कि व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट हैव बीन गिवन इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of state, friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, or in relation to the contempt of court, defamation or incitement to an offense, ये सारे वर्ड आपके टिप्स पे होने चाहिए। हो सकता है आगे आने के वाले समय में 2025 में आपको प्रीलिम्स में इनमें से ऑप्शंस मिल जाए देखने को कि इनमें से कौन कौन सा आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में मेंशन्ड है। ठीक है, अगर बोल देगा सेडिशन मेंशन्ड है क्या तो आपको देखने को मिल रहा है क्या, नहीं है, सेडिशन नहीं है, तो सेडिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो अकॉर्डिंगली आपको इसको याद रखना है। ठीक है सर, चलिए अब जब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 सब 1 का बी पार्ट, उसमें बोलता है टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब आप असेंबल का मतलब क्या होता है कि आप सारे लोग ग्रुप में खड़े हैं विद सम पर्पस, राइट। और वो पर्पस जो भी होगा वो पीसफुल होना चाहिए, है ना। आप ये नहीं कि तलवार लेके खड़े हो जाए, गन लेके खड़े हो जाए। दिस शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड एंड दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब क्लॉज। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर के लिए जब हम देखते हैं असेंबल के लिए तो हमारे पास जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ 2 है प्राइमरीली। एक है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो जब हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का देखते हैं तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स था जिसमें हम लोग देखे थे इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड XYZ। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखते हैं असेंबल वाला, इसमें 2 चीज आपको याद रखना है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है सर, ओके। फिर अब टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बोला गया कि आप सिटीजन्स, आपको राइट है कि आप कोई एसोसिएशन, ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सब बना सकते हैं। इसी के अंदर आप एक पॉलिटिकल यूनिट भी बना सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, आप एक कंपनी भी बना सकते हैं, एक पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, है ना, एक फर्म भी बना सकते हैं। ये सारा राइट प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19C के अंदर। लेकिन सर डाउट ये हुआ कि क्या इसमें हम स्ट्राइक करने के लिए एसोसिएशन बना सकते हैं या लॉकआउट करने के लिए।
तो ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन केस वर्सेस द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो एसोसिएशन केस देखा गया, तो इसमें पाया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, बोला कि नॉट इंक्लूडेड द राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट, इसके लिए आप एसोसिएशन नहीं कर सकते। अगेन जब इसका हम लोग सब क्लॉज 2 आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के 4th पार्ट में देखते हैं, तो इसका एक्सेप्शन क्लॉज दिया हुआ है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया है। इसमें आपको याद रखना है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मूव करने का फ्रीडम से क्या चाहा जा रहा है, इससे इंटायर कंट्री इज वन, इसकी फीलिंग को इंडोर्स की जा रही है ना, कि मूव एनीवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। इससे एक फीलिंग ऑफ वननेस, अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइज होता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि फ्रीडम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब कंट्री के अंदर मूव करना, इसमें प्रोटेक्टेड है। लेकिन वहीं जब हम बात करेंगे कि मूव आउट ऑफ द कंट्री, वो प्रोटेक्टेड है क्या, इस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके, याद हो गया। अब देखिए इसका जब हम लोग एक्सेप्शंस देखते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या क्या मेंशन्ड है। इसमें मेंशन्ड है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है सर, तो इसका मतलब आपका जो मूवमेंट होगा इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए होगा, है ना। अगर इनका ब्रीच हो रहा है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को हैम्पर करता है, तो आप पे रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट में लगाया जा सकता है। ऑल्सो बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई एरिया ऐसा है जो जैसे जहाँ पे इनर लाइन परमिट्स वगैरह होते हैं, जैसे अपने नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह में, वहाँ पे स्पेशल परमिट्स वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, और कुछ डेजिग्नेट कर सकती है सरकार भी एरियाज जहाँ पे जाना आपको अलाउड नहीं है, मूव करना अलाउड नहीं है। कुछ न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, कुछ डिफेंस एरिया हो सकता है, एंड एक्सवाइजेड। तो अगर वो बाय लॉ प्रोवाइडेड है, ओनली देन इट कैन बी कर्ब्ड, एल्स यू हैव द फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है सर। अब देखिए फिर ई पार्ट में जो राइट है, फ्रीडम है, उसकी बात करता है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, रिसाइड रिसाइड भी आप कहीं भी कर सकते हैं। अगेन ये एकदम मिलता जुलता है, डी और ये एक सा है। इसको भी इसीलिए प्रमोट किया गया ताकि आप पूरे इंडिया में कहीं मूव कर सकें, आपको एक कॉमननेस दिखे, एक वननेस दिखे, एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइज हो। एकदम सेम टू सेम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी आप जब देखते हैं तो इसका डी और ई का सेम ही है ना, इसमें मेंशन भी है, डी एंड ई का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सेम है, वही सेम जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपको माइंडेड ये सब चीज़ें याद रखनी है, खास करके जनरल पब्लिक और शेड्यूल ट्राइब का जो इंटरेस्ट है। इसको अगर मेंस में आंसर आते क्वेश्चन आता है जो कि एक्सप्लिसिटली पूछा है, तो आपको ये सी चीज़ें बतानी पड़ेंगी सर। ये अभी 2 साल पहले के मेंस में आपको एविडेंस बताऊंगा कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। लास्ट जो फ्रीडम ग्रांटेड है हमारा आर्टिकल 19 में, वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, मतलब आपको कोई भी काम करना हो, आपको कोई बिजनेस करना हो, कोई ऑक्यूपेशन होल्ड करना है, आपको गारंटीड है इस आर्टिकल के अंदर। तो ठीक सर, ऐसा करते हैं हम लोग जाके कुछ इलीगल स्मगलिंग का बिजनेस चालू कर देते हैं, वो अलाउड है क्या? बॉम्ब बनाने का बिजनेस चालू कर देते हैं, क्या वो अलाउड? नहीं। डेफिनेटली अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, क्या है? 2 है यहाँ पे, हम लोगों ने उसको हाईलाइट कर रखा है येलो में। क्या बोल रहा है? द प्रोफेशनल और द टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब अगर स्टेट कुछ क्वालिफिकेशन रखती है ना, किसी प्रोफेशन के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट या स्किल्स वगैरह, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अगेंस्ट दिस आर्टिकल। वो फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, दैट इज पर्टिकुलर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब और दैट बिजनेस और दैट प्रोफेशन, दैट इज वाई दैट इज अलाउड। उसके बाद द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय अ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट
of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of the citizen or otherwise। इसको समझाइए सर। इसमें सिंपली ये कहना चाह रहा है कि अगर स्टेट चाहे तो वो कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स को एक्सप्लिसिटली, पार्शियली या कंप्लीटली रिजर्व कर सकती है कि ये सरकार ही करेंगे। जैसे हम लोग का डिफेंस का काम होता है, जैसे हमारा रेलवे है एट प्रेजेंट ऑपरेशनल, उसका वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। अभी कुछ वक्त पहले तक कोल इंडिया लिमिटेड, वो भी पूरी तरह से जो था वो मोनोपोली था उसका, जब हम कोल माइनिंग की बात करते हैं, लेकिन उस सेक्टर को धीरे धीरे खोल दिया गया। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी गवर्नमेंट्स डिसीजन, है ना। गवर्नमेंट विल नोटिफाई कि कौन सा पर्टिकुलर एक मोनोपोली स्टेट की होगी, कहाँ पे प्राइवेट विल बी इक्वली इंडोर्स्ड एंड विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट और नॉट। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन भी सरकारी जो स्टेट्स को है वो अलाउड है। दैट इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है सर, ये तो खत्म हो गया आर्टिकल 19। अब आइए आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20। ध्यान से पढ़िए सर, इसका टॉपिक जो है वो बोलता है द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसको पढ़ते के साथ आप इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए कि सर कन्विक्शन होता क्या है। तो कोई भी जब क्राइम होता है, कोई भी जब प्रोसेस ऑफ आपका ये होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रिमिनल चार्जेस, मतलब पुलिस अक्यूज करती है कि ये पर्टिकुलर आदमी ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल चार्जेस। ठीक, फॉर्मली अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बाय द पुलिस। दूसरा एक होता है टर्म अरेस्टेड, मतलब कि उसको कस्टडी में रखते हैं। अब वो पुलिस कस्टडी हो सकता है, जुडिशियल कस्टडी हो सकता है ना, तो वो होता है अरेस्ट। तीसरा होता है कन्विक्टेड, जो कि इस आर्टिकल का कंसर्न है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया बेस्ड ऑन दी एविडेंस कि हाँ आपको ये क्राइम की पनिशमेंट दी जाती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं कन्विक्शन। तो देखा जाता है कि अब प्रोटेक्शन क्या आर्टिकल 20 में बताया जा रहा है कन्विक्शन के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल को सबसे पहले पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सबसे पहले बोलता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, nor be subjected to the penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। इसी को हम लोग आम तौर की भाषा पे बोल देते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आज पेपर चीटिंग का मान लीजिए कहीं पे प्रोसेस ऑफ पेपर चीटिंग हो जाता है, ठीक, उसके लिए पर्टिकुलरली अभी जो लॉ है वो बोलता है कि 1 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा अगर कोई चीटिंग करते हुए एग्जाम में पकड़ा जाता है तो। ठीक है, लेकिन जैसे एक कोई बंदा पकड़ा गया, अब उसका जब प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, है ना, उसका जब कन्विक्शन हो रहा था, उस बीच सरकार ने लॉ चेंज करके बोला नहीं 1 साल नहीं 3 साल का उसको सजा मिलेगा। लेकिन चूंकि जब उसने क्राइम किया और जब उसको प्रोसिक्यूट किया गया, उस टाइम पे जो एक्ट था वो 1 साल वाला था, तो इन प्रोसेस जब वो कन्विक्शन हो गया उसका, उसके बाद 3 साल आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि, और ये भी याद रखिएगा ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में है ना, कि अगर मैं आज कोई ऑफेंस करता हूं तो मुझे आज का जो प्रेजेंट लॉ है उसके हिसाब से ट्रायल किया जाएगा। ये नहीं कि इन प्रोसेस अगर मुझे लॉ में या एक्ट में चेंजेस आया तो वो चीज़ रेट्रोस्पेक्टिवली मुझ पे एक्ट नहीं करती है। इसी को हम लोग समझने के लिए दो तरह का लॉ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टिव और एक रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आज वो लॉ बना लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बहुत पहले से लागू कर सकते हैं हम चाहें तो। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब आज लॉ अगर एग्जिस्टेंस में आया है तो आज के बाद वो एप्लीकेबल होगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के क्लॉज में बोला गया कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता है, आज का जो लॉ एग्जिस्टिंग है उसी के बुनियाद पे मुझे फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी बात, अगर सिविल मैटर होता है जैसे कि अगर आपका टैक्सेशन वाला मैटर वगैरह होता है तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, दैट इज अलाउड इन दिस आर्टिकल। ठीक है सर,
ये हम लोग देखते हैं बहुत सारे केसेस के साथ। अभी रिसेंटली वोडाफोन का जब केस आया था उसमें भी इस चीज़ को रिआइटरेट किया गया। ठीक है सर, दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं इसका। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसको बोला गया नो डबल जेऑपर्डी। अभी थोड़ा सा और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी एक ब्रॉड आइडिया लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई क्राइम किया, ठीक, मुझे प्रोसिक्यूट किया गया, मुझे सजा सुना दी गई उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए। अब उस क्राइम की सजा सुना देने के बाद मुझे अगेन उसी जुर्म की, उसी क्राइम की फिर से सजा नहीं सुनाई जा सकती, कोई दूसरा या कोई भी। ठीक, अगर मुझे एक बार पनिशमेंट मिल चुका है उस पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो हमारा कन्विक्शन हुआ था उसके बिहाफ पे, तो फिर से मुझे कोई दूसरा पनिशमेंट नहीं मिल सकता। सेम पनिशमेंट सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वन पनिशमेंट नहीं अलॉट कर सकती। ठीक है। तीसरा है नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि मुझे खुद के खिलाफ गवाही देने से प्रोटेक्शन दिया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। कि मुझे जबरदस्ती ये नहीं बोला जा सकता है कि आप अपने खिलाफ जो है वो गवाही दीजिए, और अगर वो मैं दे भी देता हूँ, मैं बोल भी देता हूँ कि यस आई डिड दैट क्राइम, दैट विल नॉट हैव एविडेंशियरी वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसको एविडेंस के तौर पे माना नहीं जाएगा। ठीक है सर। चलिए सर अब थोड़ा और समझते हैं। जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो हम लोग जब पढ़े हैं तो इसके लिए जब एक केस को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो इसमें वही हुआ कि जब प्रोसेस चल रहा था उसमें जो फाइन लगाया गया था जो क्राइम करने वाले थे, इन प्रोसेस फाइन को डबल कर दिया गया। ठीक, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब होता है कि इन क्रिमिनल केसेस नो एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन ऑफ लॉ या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। तो ये केस याद रखिएगा, केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको आंसर में कोट करने के लिए आपको मदद मिलेगा। दूसरा सर, क्या बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते क्रिमिनल लॉज में भी? तो रतन लाल वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब का जब केस आता है तो इसमें बोलते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी अगर वो बेनिफिशियल है टू द क्रिमिनल और टू द पीपल हु इज प्रोसिक्यूटेड, अगर उसके फेवर में है, यानी कि उसकी सजा को अगर कम करता है, उसके फाइन को कम करता है, इम्प्रिजनमेंट को कम करता है, तो दैट इज अलाउड। ठीक है। आप उसको हार्श नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते सजा को, लेकिन अगर कम करते हैं तो दैट इज अलाउड। ठीक है। तो ये एक तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेते हुए, इसको नजर पे रखते हुए इसको कंसीडर किया गया था। चलिए सर आगे देखते हैं सर। डबल जेऑपर्डी का मतलब हम लोग देखिए, इस चीज में ये भी याद रखिएगा कि डबल जेऑपर्डी का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों हो चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप प्रोसिक्यूशन भी आप पे चल गया है ना, आपको प्रोसिक्यूट कर लिया गया है और आपको पनिशमेंट भी दे दी गई है, सजा भी सुना दिया गया है, तब डबल जेऑपर्डी एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जैसे मकबूल हुसैन वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे का जब केस हुआ तो इन्होंने बताया कि कस्टम अथॉरिटी वाले ने इनका जो भी प्रॉब्लम था उसके लिए ऑलरेडी उनको फाइन और जो पनिशमेंट है वो दे दिया है। ये मैटर जब कोर्ट में गया तो ये मकबूल हुसैन साहब ने बोला कि डबल जेऑपर्डी इज नॉट अलाउड, आप मुझे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं सुना सकते। तो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो प्रोसिक्यूशन हुआ और ये जो पनिशमेंट हुआ, इट शुड बी बाय द जुडिशियल अथॉरिटी। अगर कोई और अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अगर वो ये काम करती है तो दैट इज अलाउड, कि वो अलग तरह से आपको निपटारा कर सके और मैं अलग से, मतलब जुडिशियरी, जुडिशियल अथॉरिटी हैज़ द राइट कि आपको उसके तरह से ट्रायल करके पनिशमेंट सुना सकती है। ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू बी नोटेड इज कि आपको अगर जुडिशियल अथॉरिटी ही प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट देती है तब डबल जेऑपर्डी इज नॉट अलाउड, है ना। एक बार एक जुर्म की 2 सजा आपको नहीं मिल सकती। फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या है सर, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रोसिक्यूशन हो चुका है, इंक्रिमिनेशन भी हुआ है उसी पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन के लिए, है ना, उसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, और इंक्रिमिनेशन को उसी इंसान के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, सिर्फ तब ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो कि जो प्रोसिक्यूटेड है अभी फिलहाल, उसको अगर बोला जाए कि आप गवाही दीजिए कि आपने खुद मर्डर किया है या पर्टिकुलर क्राइम किया है,
तो क्या उस पर जबरदस्ती की जा सकती है? तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि नहीं, नहीं की जा सकती। और अगर कर भी दे और वो इंसान बोल भी दे कि हाँ वहाँ पे जो है वो मर्डर हमने किया था, उसको भी एज ए एविडेंस नहीं माना जाएगा कोर्ट में। ठीक है। तो इससे एक चीज याद रखिएगा, राइट टू रिमेन साइलेंट जो है वो प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। सर ये सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना लग रहा होगा। जब हम लोग आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन दैट आर्टिकल। लेकिन वो फ्रीडम था, और यहाँ राइट टू रिमेन साइलेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है एक इंसान का। काफी इंटरेस्टिंग, राइट। अब देखिए सर, क्या कोई भी चीज नहीं बोल सकते या कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ परमिसिबल चीजें हैं, है ना। इसको भी केस लॉज के साथ बताया गया था, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि राइटिंग स्पेसिमेन, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, इन सब को माना गया है कि इनका एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होता है। और इसको अगर कोई जुडिशियल प्रोसेस में या प्रोसिक्यूटर अगर ये डिमांड करता है तो दैट विल नॉट बी cited as self incrimination against this article, so that is allowed, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉज। ठीक है सर, तो ये आर्टिकल 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और इसके बाद का जो दो आर्टिकल, आर्टिकल 21, 21A एंड 22, ठीक है, बेसिकली 21 एंड 22, उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है। और हम लोग फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो यूपीएससी सीएसई में पूछे गए हैं उन सब को भी डिस्कस करेंगे, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो पॉलिटी से सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं यहाँ पे, या मेल आईडी है उसमें मेल भी कर सकते हैं। और इन जनरल अगर कोई आपको डिटेल चाहिए आईएएस नामा के लेक्चर्स के बारे में या क्या क्या कंटेंट्स हैं इनके बारे में, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल IASNAMAH नमः को जा सकते हैं। ठीक है। ये टेलीग्राम आईडी है जहाँ पे हम लोग हर दिन की वेल क्यूरेटेड क्विजेज वहाँ पे हम लोग करवाते हैं, उसको आप जाइए, उसको अटेंड कीजिए, है ना। और उससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप हम लोगों को फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, गुड डे, थैंक यू।